back. मतलब back again? No, well, we are kind of back in a. We're back again. How about We start told our you backs? we told you last season that this was it, but then we're back. Yeah. So welcome back to our show Do Mastane. We're very deep. Season number 11,000, I think. This is the 1300 season. Yeah. And Cinedreams, being one of the largest conglomerates, not just here in North America, but all around the world and in this universe. But we thank them yet for sticking with us, believing in us, and sponsoring our Do you think show. they actually believe in us, or they just stuck because of the contract? Well, it says in their tagline. What does it say? What does it say? Man? Something yourself. It could be F whatever. Yourself? It does say F yourself, right? It looks like that, doesn't it? Anyways, खुश आमदीद है आप सब लोगों का हमारे नए सीजन दो मस्ताने के इस सीजन में, as we had told you in our last episode last season, कि हम कुछ नए segments भी introduce करेंगे. We'll have new faces, new topics, but the topic of the day, of the week, of the year, of the century is that Justin Trudeau has resigned from the post of Prime Minister of Canada. About time. I would say he was overdue. He overstayed his welcome, which was over what, 4 years ago? Didn't he win it like in 15 or 16 or something? हाँ तो 19-20 में तो उसका खत्म हो चुका था. He should have stepped down with the mask on during COVID. He should have wore a helmet. Should have worn. I think now he should wear a helmet. Yeah. Oh. Well, Abdullah. But as surprising as that sounds. Yeah, I know. No, but go ahead. I know what you're gonna say, man. Look, man, How about you vent first? I can sit here all day, all night. How about you vent first? Okay, I've been venting in my last 5-6 seasons that we've been running. I think Canada is going down the the shithole. Yeah, the shitters. Shitters. तो मैं तो inflation की बात करूं या किसकी recession की बात करूं, hyperinflation, deflation, hyperventilation, interest rates, mortgage rates, real estate. Which one should I pick? यार पिछले 3-4 सालों से what the hell have we been doing? We've been talking about the goddamn interest rate hitting 7-8%. Yeah, and yet he continued to reign over this country for a good 10 years, man. We had to put up with this good-looking man for 10 years. Good-looking man. You cannot help yourself. You have to say that. It doesn't matter how much you hate the guy. That's the only thing he's got going Listen, for himself. You bastard. You're so lucky that God has given you those great looks. Those incredible looks. At least he's got that, man. At least someone's got that. I know the guy down south doesn't at all. Well, hey, listen. We'll get to him. We'll talk about him in a second. But I'm not gonna. You know what? I'm done. क्या कहते हैं, down talking Canada and the economy and the Prime Minister. What do you have to say to defend all of this? Because you clearly love the guy, not just for his looks. Well, I do like him for his looks. It's very artificial. I mean, so do I. And very superficial, but I don't know if it's as much as me liking the guy as much as it is for me to be sympathetic towards the guy. I think that politics is a very dirty game, Abdullah. You know that. All politicians have different characteristics on how they deal with adversities. Okay. Yep. Trump deals with it by just telling you to F off, and people love that. Yep. This guy, his problem is he's too conscious about his own, the way that people look at him. What's the persona? So do you think that's a good thing, or did that work against him? I tend to think he's a little too nice. Yeah, that's my point. That's exactly the point that you just raised, Abdullah, that when you go out to work, Abdullah, what do, man? When you're sitting in meetings, when you're with friends here at the studio or whatever, don't you sit there and say, okay, I want to make a great impression, a positive impression, and I want people to like me. I'm exactly like Justin Trudeau. Not just the looks, by the way. Everything about me is... Don't look now, Abdullah, but you're making my case for me. All I'm saying is that I've seen a lot worse guys. I've seen guys who talked about radical Islam, these crazy black people. Like I never knew she was black. I thought she was an Indian. किसकी बात कर रहे हो यार ये? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तुम्हें तो पता है ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? उस पे भी आएंगे हम. तो मैं ये कह रहा हूँ कि at least this guy was politically correct. Maybe too politically correct. Maybe his policies were way too centered and he was catering to different groups, different tabke in Canada. No, and because he wasn't
he wasn't sure and in control of the actual policies that he wanted to instill. Yeah. And he was trying to please too many people. He was a वही तो crowd यार, pleaser. people would walk up to this guy, And tell him to F tell off. him to spit on his face, tell him to F off, और वो बेचारा, वो बेचारा अपना वो at least you got to defend yourself as a human being. Forget that you're prime minister and then No, you have but, to put up with a certain etiquette Abdullah, and that's why protocol. I'm defending him. That's why I'm defending him, because it takes a lot more guts to stand there Ah. and have someone come up to you and say, you know what, Trudeau, you're a piece of shit. Right nose to nose, man. Yeah, I've And seen he those turns videos. around and goes, thank you very much, and walks God off. bless you. Do you think, Abdullah, do you think that in his heart he's very happy that that guy just called him a piece of shit? No, he's pissed off. But he controls himself. I don't know about that. Maybe He's- he's read too much into No. Gandhiism. No, maybe he is, Abdullah, maybe. But I can say, and I will say this. Gandhiism कह रहा था मैं. I will say this with like my brothers, man, they can't stand the guy. Even Mani, who was one time, no, Mani was a liberal. He was a liberal guy, right? Mani Mani had a just liberal party. for your sake or the audience. Mani is a friend of ours. Yeah. Oh, sorry, my apologies. Well, he was on our show, remember? He was, yeah. In the first season. But But anyways, but no, but Mani he was hates him. he was a member of the Liberal Party, He was, yeah. and he turned his back on Trudeau because he's like, you know what, this guy is just too much. He's too deceitful. And I'm saying, you know, he's not deceitful. He's a politician. Politician हो या जो भी हो, लेकिन एक देखें एक What do you जगह. want him to do? What is a politician supposed to be? That's his job. He's a siyasetdan. He's a siyasetdan, but sometimes I think he was acting way too. इतना बुरा हाल हो गया अब कनाडा का, आप सोचें in the last. Well, the I'm not carbon gonna say tax too, I'm not right? gonna say 10 years. And look, there's a lot of things that we can talk about. A lot of things went wrong. A lot of things went wrong. ठीक है, वो तो हमें समझ आता है. लेकिन इतना बुरा हाल हो गया कि now someone as bad as that guy might be, as evil as Luciferous that guy can be, Azam calls him that all the time. Man. he has the guts. I was going to say something else, but guts a little higher, a little higher. Yeah. He has the guts to call Canada the 51st state. Why do you think? Because we're in a position where हमारे हाथ इस वक्त एक फकीर नहीं होता, फटी हुई चादर वाला, उस जैसा हो चुका है कि now anybody can walk over all over us and say, you know what, खड़े हो जाओ, मैं I'll own you, I'll take care of you. And that's exactly what Donald Trump is doing right now. Abdullah, I don't know. I can't argue against that because look, let's face it, man. If you're gonna show, वो जो that लेकिन मसला ये है कि जिसके लाठी उसके क्या जिसके हाथ में जिसकी हाँ जिसकी something जिसकी लाठी लाठी जिसकी उसकी बैल, भैंस। हाँ हम भैंस बन गए हैं. तो यार हम भैंस बन गए हम तो. वो भी बिल्कुल गरीब और अब भूखी और सूखी अब भैंस. ऐसा है कि अब तुम क्या चाहते हो, अब्दुल्ला? तुम मुझे ये बताओ, तुम चाहते क्या हो कि वो अब अगर वो साला वो जाहिल अगर वो ऐसी वो बकवास कर रहा है, क्या नाम है उसका, वो जो साउथ का जो है वो. नहीं वो मैं बकवास नहीं समझ रहा उसको. I think that's a No, great idea. It's a great idea. I'm with the 13% who voted that should happen. Okay, but Abdullah, I'm just saying that the guy he's not very pristine in the way or refined in the way he speaks. He's not a polite guy. And the way that he mentioned that about being a 51st state, how do you think that makes the rest of us feel? Do you think, now what do you expect? No. Let me just ask you, what do you expect Trudeau to say to him? He cannot say anything to him. मेरे एक वाइज मैन ने मुझसे अभी वो कहा, मैं आपको बताता हूँ. अभी यार वो अब्दुल्ला, वाइज मैन मुझसे क्या कहा कि अगर तुम कीचड़ में तुम रोलोगे क्या, उसमें वो लोटोगे इसमें जो भी जो what the word is, then you're going to get dirty too if you're going to start doing mumari with that guy. with who? Donald With Trump. Ah. So what do you expect Trudeau to do? Well, he did the offer or issue a statement saying there's not a snowball's chance in hell that Canada will become the 51st state. अब तो यार अब तो बोल सकता है ना. For the next 2 months, he steps down. First of all, the guy steps down and he says, oh, you know what, I'm stepping down, but I'll stay for another 2 months. 24 मार्च तक, यानी वो 23 मार्च पाकिस्तान के साथ मना के उसके अगले दिन रिटायर होगा. But पाकिस्तान चला जाएगा. पाकिस्तान चला है. वहाँ इमरान खान के साथ के वो जेल में चला जाएगा. साथ बैठेगा. You know what, Imran? It's an honor being in jail here with you, and I just love it here. Come, I need some company here. some company. We should sit इकट्ठे and Ikkathe, we should sit. But please don't take my kambal. It hasn't been cleaned in many days. But you know, I know we're really pissing on these guys, both of them, Donald, Justin. We haven't even started talking about a little him, bit of man. Imran too, but ये हमारी आदत है. बिल्कुल ऐसे ही. But just an interesting thought, and I think I read this somewhere, just to keep it light and to end on a light and क्या कहते हैं, light-hearted note. Light-hearted note, yeah. अगर कनाडा बन जाता है 51st state और किसी एक को गवर्नर चुनना होता है, who would you pick? Somebody actually offered. Actually, Canada? Donald Trump offered the position to, take a guess.
in America? Yeah. Like he said, he's asked a Let me- Canadian celebrity that he'll make him the governor of Canada, of the state of Canada, by the way. Now, would you say he's a celebrity or is he a politician? Celebrity, Really? most famous Canadian ever. No, don't say anything. Come on, you gotta know this. You gotta know Is it Wayne that. Gretzky? Yes. No way. Yes. Is that true? Even though अपना वो क्या नाम है उसका वो businessman जो है हमारा, I forget Shark his with name. the guy with Yeah, the the shark guy, man. Yeah, I forgot his name. Yeah, I Shit. forget. You know the guy. You know, he does a show. He's a millionaire. He wants Yeah. that position. He's all for it. So am I. So is Wayne. But Wayne would be a I think great Wayne would be would be a amazing great mayor. because he doesn't care. He doesn't want it. Yeah. He'll just take it and say, "Okay, no problem, I'll have it." Just like everybody. Trudeau wanted to be prime minister, man. He lived his life to be the prime minister. He wanted to take over his father's क्या कहना चाहिए यार, that aura of his aura. father. और वो इसीलिए अभी रिटायर हो रहा है because you know he knows if he stays, if he didn't step down, that he would be stepping down eventually as the mayor of the state of Canada, not prime minister of Canada. तो अच्छी ये अकलमंदी बात की है जस्टिन. वो उसने ये देखो बड़ा मतलब बड़ा समझदार शाना है. शाना है वो साला, वो बड़ा होशियार है वो मासूम साला। लगता है वो सिर्फ. लेकिन है नहीं। डोनाल्ड से भी ज्यादा शातिर है वो. वो डोनाल्ड को यार शातिर कहना चाहिए क्या उसको बहादुर कहना चाहिए? डोनाल्ड तो यार he's a joker. He is, He's but a joker, man. but Abdullah, He's a filthy rich joker you who can call him a joker all you want. He was president once, and he's going to be president again. yeah, and he's going to be president again. And he's the last president of the United वो States. कब्र से भी president होगा. हाँ. कैस्केट में भी नहीं वहाँ से- वो जहन्नम में से दोज़ख से निकल के आ गया ना, वो फिर president बन जाएगा वो. When he's going to be in the दोज़ख में seventh जाके level. वहाँ उससे कहेगा अपने लूसीफर से कि भाई तू what are you doing here? What are you doing here? Don't you know this is my backyard? Go to China. I got this. Anyways, हमारा वक्त तमाम हो रहा है. हमें आज और भी प्रोग्राम आपको नए दिखाने, नए चेहरे दिखाने, तो जाइएगा मत. But please, hey JT, DT, please man, we're just pulling your legs. All We six love of you them. guys, man. Me and Abdullah, we have all the respect for all these guys, including some of the dictators of the world, like the The one that you dictators told me of- about in Nigeria or Congo or something like that. Remember that guy? Yeah. Mugabe. Mugabe. Mugambo. Bully. Mugambo. चलिए भारत. Mugambo खुश हुआ. वक्त हाँ मुगाम्बो बहुत खुश हुआ. डोनाल्ड इस वक्त Donald डोनाल्ड खुश हुआ. We'll be back with a new segment after this break. Stay tuned. यार हम तो अब तो फायर हो गए. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स. हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे. आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स. फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त बहुत आला चाय, आला चूरो चाय. चाय. creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक. Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय. हमारा सीजन ऑफर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कैनेडा. चाय सोशल स्पॉन्सर. वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल. ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, Best kadak chai in town Absolutely. is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future.
HK Movers. Home, offices, apartments and delivery. Big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. आप बोल दो ना यार. तो बोलना क्या है तू बताएगा. बोल दो प्लीज यार. अरे भैया शुरू हो गया यार. शुरू हो गया. हो गया. ओ सॉरी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस सेगमेंट में. मेरे साथ मैं हूं दक्ष, आप सभी का होस्ट और आप सभी का दोस्त. ओ सॉरी दोस्त तो यार मेरे को कोई बनाता ही नहीं है. तो आज मेरे साथ है मेरी बहुत ही काबिल दोस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड शिल्पा अरोड़ा है मेरे साथ. तो शिल्पा जी, कैसा लग रहा है आपको इतना कुछ अचीव करने के बाद? सब कुछ लाइफ में, पैसा कमा लिया, नाम शोहरत सब कमा लिया, उसके बाद फाइनली आपको फ्री में मेरे साथ बैठने का मौका मिला, कैसा लग रहा है? ये तो तूने सही है कि ऑटो करेक्ट खुद कर लिया, ये टैलेंटेड. नहीं तो पहले शो पे तुझे जो मार पड़ती, और जो दूसरी बात जो तू मुझसे कह रहा है कि आपके शो पे आने का, ये शो पे अगर मुझे कोई कपिल आके मुझे बोलता है जो लाइन जो तूने ली है, तो कपिल बोलता तो डेफिनेटली मैं बोलती कि बहुत अच्छा लगा. पर ठीक है, तेरे शो पे भी यस, आई एम सो हैप्पी टू कनेक्ट विद यू गाइस एंड विद हिम. इट्स सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू जस्ट सिट बिसाइड यू फॉर दिस. चलिए बहुत अच्छा. अब मेरे को आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या हम दो मस्तानों पर कब्जा कर पाएंगे? बिल्कुल. तो कोशिश बिल्कुल यही है. तो देखते हैं दो मस्ताने हमारे बारे में क्या सोचते हैं. अपनी कोशिश यही है. नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जो 5 लोग हमें देख रहे हैं, सॉरी जो 4 लोग हमें देख रहे हैं, क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे वो मैं जानना बड़ा जरूरी समझता हूँ दर्शकों के लिए. तो कहाँ है वो 4 लोग? सामने कहीं दिख रहे हैं आपको? मुझे दिख रहे हैं शायद. वो 4 लोग यही है और वो कुछ नहीं कहेंगे. चलिए कोई ना, हम शुरू करते हैं. फिर हमारा काम है एंटरटेन करना लोगों को, नहीं तो आवाज वाले हमें स्टूडियो के बाहर फेंकेंगे. तो जैसा कि आप सब जानते हैं 2025 की शुरुआत हो चुकी है, और इसी के साथ हमारे पास बहुत ही ज्यादा मसालेदार खबरें. तो क्या लगता है कैसा रहा आपका 2025? पहले तो बहुत बढ़िया, एक शानदार तरीके से शुरुआत हुई है. पार्टी शादी की है, दारू वारू पी है, ऑल गुड. पर जिस तरह की शुरुआत तू पूछना चाह रहा है तो मुद्दे पे आके पूछ. चलिए, तो अभी ताजा खबर ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन करने का फैसला कर लिया है. उनकी अंतरात्मा से आवाज आई, जो हमारे पंजाबी भाइयों के फेवरेट जट ट्रूडो जट, उन्होंने रिजाइन करना फाइनली डिसाइड कर लिया. आपको पता है उनको बुलाते हैं एक्चुअली यही है, इट्स नॉट जस्टिन ट्रूडो, इट्स जस्टिंदर. You know, sounds very nice for all those Punjabi, me being a Punjabi too, but yeah, just. अच्छा शिल्पा जी, सबसे खतरनाक बात मैं आपको बताता हूँ. मुझे अभी तक जो समझ में नहीं आ रही है, मेरे को लगता है दर्शकों को भी समझ नहीं आ रही होगी. क्या? कि ट्रूडो ने रिजाइन किया तो किया क्या वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन किया या फिर गवर्नर ऑफ कनाडा की पोस्ट से रिजाइन किया? I think I'll go for the second one, governor of post for the US. तो बस आप भी हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन क्यों किया? चलिए, इसके बाद एक और ताजा खबर जो ये है कि आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा रहते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के प्रेसिडेंट इलेक्ट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप. हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप. तो वो बड़े पॉपुलर हैं आज की डेट में और उन्होंने बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट दी है. वो आजकल जब से वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, उनका ये है कि सब कुछ कब्जा करना है उनको. ग्रीनलैंड हो चाहे पनामा कनाल हो, और सबसे बड़ी बात उनको कनाडा भी चाहिए. तो इस बारे में आपको क्या लगता है? यार अमेरिका है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है, कुछ भी कर सकता है यार. सबसे बड़ी बात इसमें पता है आपको क्या है कि ट्रम्प जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उस तरीके से मैं अपने अमेज़न कार्ड के साथ बिहेव करता हूँ. तो बिल्कुल उस तरीके का बिहेवियर है. और इसी पे डग फोर्ड ने भी एक बात बोली है. उन्होंने कहा है कि हमें मिनेसोटा दे दो, लेकिन वो ये चीज भूल गए कि खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए होता है. और जो अभी कनेडियन इकोनॉमी का हाल है उसको देख के लगता नहीं है. और इसी में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा
ट्रूडो से मुझे ये लगता है कि उन्होंने रिजाइन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया कि उन्होंने एक बार ग्रोसरी कर लिया और उसका बिल देख लिया। एब्सोल्युटली, तो ये तो एक कॉमन मैन होकर कॉमन फीमेल ग्रोसरी करने वाली लड़की मैं आप बता सकती हूँ कि यस डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। तो अगर आपको कभी लगे कि ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तो ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कम बोले और मुझे बोलने दे थोड़ा, है ना। अच्छा शिल्पा जी एक बात बताओ, इमेजिन करो कि अगर एक बार कनाडा में हम मर्ज हो, यूएस में मर्ज हो गए, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? नायग्रा फॉल्स उनके पास चला जाएगा यार तो ऐसे कैसे, उनके पास अपना है, हमारे पास अपना है, तो उनका हो जाएगा ना अमेरिका ऐसे का। कैसे? तो फिर वो हमारा होश तो छुपा फिर है, हम मतलब जितने भी क्या होगा? कनेडियन लोग घूमते फिरते हैं वो बोलते हैं कनेडियन व्यू ज्यादा अच्छा है, वो तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। हाँ दैट्स ट्रू, नहीं बोल पाएंगे। हाँ, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रैम्पटन उधर चला जाएगा, वो जाने दो यार भटिंडा है, जाने दो। कोई बात और नहीं। इससे पहले कि आप सब मुझे मारने आए, मैं आपको बता दूं, ये बात मैंने नहीं बोली, मेरे एक गोरे दोस्त ने बोली। तो अगर किसी को भी मुझे मारने को ढूंढना हो तो मैं नहीं, माफ कीजिएगा। तो आप प्लीज उसका नाम हमें जरूर बताएंगे, हम सीधा उसी के पास जाएंगे। हाँ, इसी के साथ तीसरी और सबसे आखिरी खबर, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, आवाज वाले हमें टाइम नहीं देते। आप कहें हम थोड़ा अच्छा कर हाँ, रहे हैं, थोड़ा टाइम तो बढ़ेगा। इसीलिए आप जो 4 लोग देख रहे हैं, मैं भी बोलूंगा आप 4 और लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमें लोग देखें। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हम बात करना चाहते हैं वो है स्क्विड गेम के बारे में। आजकल बड़ी चर्चाओं में है, नया साल शुरू हुआ है, नया तो season शिल्पा आया। जी कैसा लग रहा है आपको सीजन 2? आपने देखा कि नहीं देखा? यार frankly speaking अभी तक नहीं देखा, हाँ। but I've heard a lot about this web series and the other day one of my friend was telling me that it's a very different kind of series and people are really loving it. तो आपने भी अगर नहीं देखी तो एक बार उसे जरूर देखें और फिर हम इसके बारे में और बात कर सकते हैं। स्क्विड गेम बिल्कुल बिल्कुल, और दर्शकों को मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा स्क्विड गेम के बारे में कि जो पहला सीजन था, स्पॉइलर नहीं दूंगा, जो पहला सीजन था उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि डिस्टोपियन वर्ल्ड है जहाँ पे लोग एक दूसरे को पैसे के लिए मार रहे हैं, लोगों की जरूरतें हैं, कुछ इस तरीके के गेम उनके साथ खिलाया गया। जो दूसरा सीजन है उसमें ये डिस्कशन हुआ शिल्पा जी कि किस तरीके से वो रिवेंज भी लेना चाह रहे हैं एक पॉइंट पे, और एक ऐसे पॉइंट पे इसको क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया गया सीरीज को सीजन 3 के लिए, जिसका मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा, और मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा और आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि कृपया करके वो शो जरूर देखें। चलिए आपने रेकमेंड किया, मैं जरूर देखूंगी और फिर बिल्कुल। शायद इसके बारे में हम और ज्यादा बात कर सकते हैं। थोड़ा सा, हाँ। because I've seen like a lot of people are recommending this to me and I'm so fascinated कि यार है क्या, एक बार देखना बनता है। So that's definitely. बट एक डिस्क्लेमर है कि जो कमजोर दिल के हैं वो बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो देख नहीं पाएंगे। बाकी मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि देखिए और अपना दिमाग चलाइए। इसके साथ ही आज का मुझे लगता है कि मुद्दा खत्म है, मेरे पास और कुछ है नहीं बोलने के लिए। तो ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग और मसालेदार टॉपिक लेके आते रहेंगे, जैसे आपके घर पे रिश्तेदार लेके आते हैं आपके। बिल्कुल, हमें भी अपने रिश्तेदार समझिए और feel free to connect with us on our just comment, connect with us on our Instagram, YouTube. Stay with us. Stay with us. Until next time. Thank you. Bye everyone. Bye bye. बॉलीवुड बॉलीवुड दोस्तों एक ऐसी दुनिया है जहां सपने सच होते हैं और कुछ कहानियां दिल को छू जाती है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां मैंने देखा है प्यार का रंग, दोस्ती का दर्द और जिंदगी के छोटे बड़े एहसास बड़े पर्दे पर जीते हुए देखा है। बेशक। तो यहाँ बॉलीवुड में गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। क्या? और डांस स्टेप्स सिर्फ देखे नहीं जाते, दिल में उतर जाते हैं। तो दोस्तों आज आपको हम एक ऐसी ही दुनिया में ले जाने वाले हैं जहां पर हर एक कहानी, हर एक सीन, हर एक गाना एक कहानी कहता है। तो चलिए स्वागत है आपका लाइट कैमरा क्लासिक्स के इस पहले सफर में। मैं हूं आपकी होस्ट शिल्पा अरोरा और मेरे साथ हैं, और मैं सिर्फ महजन का साथ देने आया हूं। आप मुझे जानते ही, अब्दुल्ला गौरी। और ये हमारी नई जो होस्ट हैं, मैं इनकी जितनी तारीफ करूं कम है, इसीलिए करूंगा नहीं। तो आज ये बताइए शिल्पा जी, किस फिल्म के बारे में आप बात करना चाहती हैं? तो हम इस शो पर हर हफ्ते आपके एंटरटेनमेंट के लिए बॉलीवुड की कुछ चुनिंदा यादगार मूवीज आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हम अपने शो पर पहली मूवी, जो कि एक 90s की ऐसी मूवी है जो रोमांस की मिसाल बन गई थी।
सोचना पड़ेगा ये कौन सी ऐसी मूवी हो सकती है जो रोमांस की एक मिसाल बन गई थी। और ये रिलीज कब हुई है? 19 ओके, आई विल गिव यू अ स्पेसिफिक ईयर, 1989। अच्छा, मैं आपको एक हिंट देता चलूं, पिछला शो अगर आपने देखा था तो मैंने इस फिल्म की तारीफों के पुल बांध दिए थे और वहीं से मुझे आइडिया आया था। उस वक्त मैं सिर्फ 14 साल का था, तो अब आप मेरी एज गेस कर सकते हैं जब ये मूवी आई। और ये मूवी मैंने शायद 14 से भी ज्यादा बार देखी होगी और मुझे लगता है काफी लोगों ने काफी बार देखी होगी। तो एनी गेसेस आप में से अगर कोई गेस कर सकते हैं? आज ये उसके जो मेन एक्टर हैं उसकी तरह ड्रेसअप और मैं उनकी मेन एक्ट्रेस की तरह ड्रेसअप होकर आप लोगों के लिए इस शो पर आए हैं, तो बता दे फिर। मैंने गेस कर लिया, वो जो हमारे बैठे हुए 2 दर्शक उन्होंने गेस कर लिया। जी हाँ, सही कहा आपने, मैंने प्यार किया। मैंने प्यार तो किया। धुन बजने लगी होगी दिमाग में। सो मैंने प्यार किया 1989 में ये मूवी रिलीज हुई राजश्री बैनर्स के अंडर, जो कि उन्होंने काफी अच्छी मूवीज पहले भी दी, बट ये एक ऐसी मूवी थी जो बिल्कुल हटके थी। उनके काफी और प्रोडक्शन हाउस की मूवी से बिल्कुल हटके थी। लीड रोल में आप सबको पता है आपके हार्ट थ्रोब सलमान खान, बिल्कुल, और भाग्यश्री, ऐनक वाले सलमान खान, पर ये ऐनक में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो और आपकी लीड एक्ट्रेस थी आपकी भाग्यश्री, जिनकी इनोसेंस ने उस समय एक मिसाल कायम की थी। आप क्या कहते हैं? हाँ, मैं असल में देखिए उस वक्त मैं टीनेजर था, नए क्रश होते हैं, आप जानते हैं, आप सब लोग भी 13-14 साल की उम्र में किस तरह टीचर्स पे क्रश हो जाते थे। लेकिन एक्ट्रेसेस की जहां तक बात है ना, वैसे तो मेरी फेवरेट माधुरी है, पूरी दुनिया जानती है। अच्छा। लेकिन ये फिल्म जो मैंने 14 बार से भी ज्यादा जायद देखी, उसकी सोल वजह भाग्यश्री थी। तो आज आप कह सकते हैं मैं भाग्यश्री की लुक में थोड़ा मैं कर पाई हूँ अपने आप को। आपने मुझे मेरी वो 14 साल ताजे यादें जो हैं ताजा कर दी हैं। फिर तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरे जहन में सारे वही गाने बज रहे हैं जो मैं सुना करता था कभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बात करते हैं अगर इसकी स्टोरी की, तो बहुत सिंपल सी स्टोरी थी। हाँ। एक बहुत अच्छी लव स्टोरी, प्यार और एक दोस्ती की कहानी, जिसमें अनगिनत लम्हे थे और बहुत ही अच्छा म्यूजिक था मूवी का, जिसने इस मूवी को एक अलग ही पहचान दी, एक अलग ही नाम दिया। और गाने तो आप सबको मालूम ही है उसके किस तरह के और किस तरह का म्यूजिक था। राम लक्ष्मण जी ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया इस मूवी में। लिरिसिस्ट थे आपके इस मूवी के देव कोहली साहब, जिन्होंने आगे भी राशि प्रोडक्शन के साथ काफी काम किया है। और आप सबको जानते हैं कि सलमान खान के सिर्फ एक ही फेवरेट प्लेबैक सिंगर जो उनकी आवाज पे काफी सूट करते थे, हमारे लेट श्री SP बालासुब्रमण्यम जी। आपने तो पूरी फिल्म का बायोडेटा दे दिया। मैंने तो सिर्फ इस फिल्म में भाग्यश्री को देखा था। पैर भारत नहीं, हमने सलमान खान को देखा था। हमें वही बहुत पसंद आए। और आज आपकी जैकेट आप आज ये वहीं से लेकर आए हैं, मतलब आप क्या? हाँ, अभी मेरी सलमान से बात हुई थी, मैंने कहा यार मैं तेरी जैकेट बोरो कर रहा हूँ, तो उन्होंने स्टिकर्स उतार दिए। स्टिकर, हाँ, उसने कहा स्टिकर नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अच्छा, वो पेटेंट थे उस मूवी के। हाँ, वो स्टिकर उसके पास रहेंगे, जैकेट अब हमेशा मेरे पास रहेगी। बिल्कुल। लेकिन गानों पे बात करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले कुछ आप फन फैक्ट बताना चाह रही थी कि इस फिल्म में सलमान खान के बजाय किसको कास्ट किया? बिल्कुल, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। आप लोगों को शायद ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये मूवी पहले सलमान खान को ऑफर ही नहीं हुई थी। ये मूवी ऑफर हुई थी फराज खान को। फराज खान जो कि अमर अकबर एंथनी या बहुत ओल्ड मूवीज में काफी बोल्ड रोल और बॉडीगार्ड के रोल करते थे, जिबिस्को उनका नाम था। उनके बेटे फराज खान को ये मूवी ऑफर हुई थी, बट बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज ये मूवी गई दीपक तिजोरी, और दीपक तिजोरी के पास डेट्स इशू, तो फाइनली हमारे हार्ट थ्रोब सलमान खान के हाथ में आई ये आइकॉनिक मूवी। जी, वैसे उससे पहले मुझे भी ऑफर हुई थी, लेकिन मैं उस वक्त थोड़ा छोटा था। बिल्कुल सही में, नहीं तो और मेरी बॉडी इतनी नहीं बनी हुई थी, वरना मैं शायद रोल मुझे ही मिलता। तो आप जरा सोच सकते हैं कि उस आइकॉनिक मूवी में सलमान खान के अलावा कोई और प्रेम होता? अब्दुल्ला खान होते। नहीं सोच सकती, फिलहाल नहीं सोच सकती, बट ठीक है, इनके साथ शायद वक्त गुजारते मुझे ये प्रेम जैसे लगने लगे, तो इसके बारे में हम शायद बाद में बात करेंगे। जी। तो अभी तो हम शुरुआत वैसे मैं एक बचपन में जब मैं ये फिल्म बहुत देखता था, तो मैं खैर बाद में, क्योंकि मुद्दा ये है कि इस फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। मैंने इस फिल्म के बाद देखने के बाद इतना मैं इंस्पायर हुआ कि मैंने बार बार प्यार किया। तो अगर मुझ पे ये फिल्म बनती तो उसका नाम होता मैंने प्यार किए। इतने सारे किए मैंने। लेकिन बहरहाल दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। और दीपक तिजोरी साहब के लिए मैं कमिसरेशंस। मेरा ख्याल है आप सड़क की शूटिंग में मसरूफ थे, तो आप बेचारे सड़क के किनारे खड़े ही रह गए। और सलमान खान कहाँ से कहाँ निकल गए। बिल्कुल।
तो आपसे अगर हम बात किए जाए तो आपका इस मूवी में आपके कुछ फेवरेट लम्हे, कोई फेवरेट गाने? गाने पे बात करूंगा मैं। देखिए गाने तो इतने सारे आइकॉनिक थे। कबूतर जा, जो मेरा ख्याल है आज तक लोगों के जहन में जब कोई सोचता होगा कि कोई चिट्ठी डिलीवर करनी है तो कबूतर तो कोई पे आता इंडियन मेल सिस्टम को नहीं याद करता होगा, सब कबूतर को याद करते होंगे। वो भी मैंने प्यार किया वाला वो कबूतर सफेद साहब। तो आपने कभी ऐसा कुछ किया था जब ये मूवी आई थी? मैं करीब कुछ 6-7 साल की थी, तो जी, मैं जी। नहीं कनेक्ट कर पाई। आप माशाल्लाह हाँ। 14-15 साल के थे, तो आपने जी। कभी ऐसा किया कि एक कबूतर को चिट्ठी नहीं, मैंने भेजा था, चिट्ठी भेजी थी, शायद आपकी तरफ भेजी थी, लेकिन वो इंडिया पहुंचते तक मेरा ख्याल है तो कबूतर जो डिलीवर है, हुई नहीं? कबूतर कबूतर आया नहीं? कबूतर रहा नहीं। लेकिन तो- इसका एक गाना वैसे आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन एक गाना जो मुझे पसंद बहुत है, लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है। क्या गाना है यार वो जो दोनों अकेले में गा रहे होते हैं, जिसमें वो कपड़े बदले जा रही होती है? ओह, मेरे रंग में। मेरे रंग में, हाँ, मेरे रंग में रंगने वाली मुझे बहुत पसंद था। उसका खासतौर पर जो लास्ट सीन है ना, वो उठाती दिखाते कुछ नहीं है, लेकिन फिर वो उसका वो बंद करके, इट्स सच अ That's the one रोमांटिक thing ना इमोशनल काइंड ऑफ कि मोमेंट। उस समय में ये सब कुछ चीजें हम लोगों के लिए काफी मैटर करती थी। हाँ। द गाय इज सो मच इनटू लव, और इट्स नॉट लाइक आजकल की हमारी मूवीज आजकल, जैसा हाँ, हम ना आजकल connect नहीं कर पाते म्यूजिक मूवीज जो है, इट्स मोर अबाउट द फिजिकल लव। एग्जैक्टली। पहले इमोशनल कनेक्शन होते थे और वही चीज पसंद आती थी। तो वो चीज हमें कितना इम्पैक्ट करती थी कि हाँ। यस, दिस इज ट्रू लव, दिस इज। दैट वाज ट्रू लव, और वही चीज इंस्पायर करती थी। एक 14 साल का लड़का जो मैं था, उसको ये जो एक क्या कहते हैं, एक मोहब्बत की, एक प्रेम की पवित्रता जिसे कह सकते हैं, उसकी मासूमियत, इनोसेंस ऑफ लव, वो दिखाया इस फिल्म में। बहरहाल गाने की बात हो रही थी, मेरे रंग में रंगने वाली, परी हो या तुम परियों की परियों रानी, की रानी। या हो कोई प्रेम कहानी। एक ही स्टैंजा में उसने 2-3 सवाल पूछ दिए, और उसके बाद भी स्टैंजा आते हैं ना, बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। तो मैं गिन रहा था, मैं गाना सुन रहा था कुछ दिन पहले, उसने टोटल 6-7 सवाल पूछे हैं और बार बार पूछे हैं, लेकिन उस सुमन ने एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। पर वो क्वेश्चन यही तो कर रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब दो। हाँ, तो क्यों नहीं दे रही वो? बट शी माइट बी गिविंग इट, डायरेक्टर ने शो नहीं किया हाँ, आपको, शी वो माइट मेरा बी गिविंग जब इट। कट हो गया था शो, उसके बाद Yeah. उन्होंने दिए होंगे। तो दिए होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है सुमन ने कोई जवाब नहीं दिए। अगर किसी को तो- जवाब पाते हैं तो प्लीज मुझे भी बताइएगा, मुझे आज तक नहीं, तजस्सुस है। जवाब जानने हैं आपको सवाल नहीं जानना। हाँ, मुझे जवाब आपको चाहिए। जवाब जानने हैं। हाँ, सवाल तो बहुत, मैं भी पूछता रहता था सुमन से अपने ख्वाबों में उन दिनों। तो आपको जवाब मिले? नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ। वही अगर तो किसी को पूछ रही वो जवाब मिले हैं तो प्लीज जरा मुझे बताइए। चलिए, आपको अगर हमारे इन्हीं सवालों का अगर कोई भी जवाब हो तो हमारे हैशटैग से जरूर जुड़िएगा, हैशटैग लाइट कैमरा क्लासिक्स। तो प्लीज अपने यादगार इस मूवी के जुड़े हुए लम्हे, कोई स्टोरीज आपको हमसे शेयर करनी हो, क्या पता हम आपकी वो स्टोरी अपने अगले एपिसोड में ऐड करें। हाँ, और जाने से पहले आपने मुझसे पूछा था कि फेवरेट मोमेंट क्या था इस फिल्म का। बहुत मुश्किल सवाल है कि अगर सारे सीन को मैं इकट्ठा करूं। शुरू के सीन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब उनका जो लव स्टोरी डेवलप हो रही होती है। पहले उसको वो दोस्ती का नाम देते हैं, फिर वो दोस्ती पे क्या कहते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस भी बहुत किया जाता है, फिर कुछ रियलाइजेशन characters- होता है, फिर रियलाइजेशन होता है। दोस्ती, इट वाज लव। हाँ, लेकिन जो आखिर के सीन है ना, जिसमें वो सलमान खान पहाड़ों को काट रहा है, बेचारा मजदूरी कर रहा है, 1 महीने तक वो पत्थर काटता रहता है। स्ट्रगल पीरियड। हाँ, वो बेचारी सुमन उसको देखती रहती है कि भाई वो क्या मेहनत कर रहा है, और गाने गा रही है। वो 1 महीने तक गाना गाती रहती है उसके लिए कि कहे तो उसे सजना ये तोहरी सजनिया। हाँ, क्या उसने 1 महीने तक मेहनत करता रहा, और वो 1 महीने तक गाना गाती रही। लेकिन बट उसके लिए स्वेटर बुना था, बहुत स्वेटर अच्छा बना सा। था। हाँ, किस रंग का था? पीले रंग का, हरे रंग का। हरे रंग का, आय हाय हाय, हरे रंग का। हरे रंग का। तो आगे अगर हम बात करें तो इस मूवी में कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स भी थे। हाँ, तो वही जो मतलब आज तक, मतलब मैं आपको बताऊं, अगर आज भी हम कहीं दोस्ती की बात करते हैं तो हम आप अपना बताइए पहले। जैसे हम आपका आज किसी से दोस्ती करते हैं और हम उस एरा के लोग हैं, हमारे 90s के हम लोग हैं, तो आज भी अगर किसी से दोस्ती करते हैं और दोस्ती हो गई, अच्छे दोस्त हैं, और फिर दोस्ती में अगर हम कुछ एक दूसरे के लिए कुछ करें तो सामने से आता है थैंक यू यार, थैंक यू, आप अच्छा लगा, तो हम सामने से क्या बोलते हैं? दोस्ती का कसूर है मिस्टर, नो सॉरी, नो थैंक यू। हाँ। तो ये डायलॉग आप सोचे कब से लिखा है और आज तक हम अपनी कन्वर्सेशंस में इस डायलॉग को लाते हैं। इट्स सो आइकॉनिक। एंड एक और डायलॉग के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते। हाँ, वही तो मैं कह रहा था। आज भी एक डिबेट का टॉपिक है। वो बेचारे एक तरफ कह रहे हैं कि हम दोस्त हैं, दूसरा वो तनकीद कर रहे हैं कि नहीं, ये तो एक पर्दा है, पर्दा सकती हुई रातों में धड़कते हुए दिलों को छुपाने का एक आग को छुपाने का एक पर्दा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या एक लड़का और लड़की कभी दोस्त होते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा। हमें जरूर इंतजार रहेगा आपके इस जवाब का। हाँ।
और अगले एपिसोड में हम आपसे वादा करते हैं कि नोट भीगेंगे नहीं। ये मेरा फेवरेट डायलॉग है पूरी फिल्म में। अगर मैं एक डायलॉग जो मैं अगर कभी परफॉर्म करना चाहूँ इस सीन को, तो मैं सलमान खान का वो जो आइकॉनिक मोनोलॉग है, मुझे लगता है शायद उनको अवार्ड मिला था ना इस फिल्म इस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्टर। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो सीन था जिसने उनका ये अवार्ड सील कर दिया था बाकायदा। और उसके बाद मेरे ख्याल है सलमान खान ने इतनी अच्छी एक्टिंग की भी नहीं। नहीं, ये इस बात में मैं आपसे डिसएग्री करना चाहूंगी। He did a very nice roles and maybe इंशाल्लाह हम आने वाले एपिसोड्स में सलमान खान की और कुछ आइकॉनिक मूवीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप हमें जरूर बताएंगे आप कौन सी मूवीज के बारे में हम लोगों से बात करना चाहते हैं, कि हम किन मूवीज के बारे में आपसे इस तरह से शो पर मिले बात करें, तो हमारे #LightCameraClassics पे हमें जरूर बताएं। हाँ, जो सबसे ज्यादा जिस फिल्म का जिक्र होगा या फरमाइश होगी या जिस एक्टर या एक्ट्रेस की फरमाइश होगी, तो हम उन्हीं की कोई फिल्म लाएंगे। तो प्लीज माधुरी की फिल्म के बारे में रिक्वेस्ट जरूर भेजिएगा, बार भेजिएगा, ताकि मैं अपने दिल की ठंडक को महसूस कर सकूं यहाँ बैठकर उनके बारे में या उनकी किसी फिल्म के बारे में बात करके। आज इनका दिल ठंडा हो गया सलमान खान का जिक्र करके। बहुत खुशी हुई हमें, अगली बार मुझे मौका दीजिएगा और हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ये मुलाकात जारी रहेगी, हम दोबारा जरूर मिलेंगे एक नई फिल्म के साथ, एक नई बॉलीवुड क्लासिक के साथ। तब तक शब्बा खैर, आप लोग अपना ख्याल रखें, हम आपसे फिर जरूर मिलेंगे अगले हफ्ते। And we'll be back right after this break. Bye. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. आवाज एंटरटेनमेंट और उनकी पूरी टीम जल्द ला रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे नए प्रोग्राम्स। शोकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज, सियासतदान, बिजनेस टाइकून्स और दीगर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ मालूमात भी दी जाएगी। फॉरगॉटन, जहां पुराने क्लासिकल गानों को हमारे उभरते हुए सितारे नए अंदाज में लाइव म्यूजिक के साथ पेश करेंगे। इश्क ममनू, एक दिलकश रोमांटिक टर्किश ड्रामा। लेट्स टॉक, मज़ाहिया टॉक शो जिसमें आप रंग बिरंगे फनकारों का हुनर देखेंगे। लाइट्स कैमरा लाफ, देखिए और खूब हंसिए वायरल और ट्रेंडिंग मीम्स और वीडियोस पर। बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम्स और पेशकश, जिसमें शोज और कार्टून्स शामिल होंगे। और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में, जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं। तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो, जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे, क्या Zoc है आपका?
Call right now 905-625-7786. ज़ौक़ वालों के लिए. Welcome back to our show दो मस्ताने. आज हमने जस्टिन ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप को काफी उधेड़ दिया है. I think उन दोनों को यार तुमने वो समोसे खाए तुम? जोर से हिचकियां आ रही होंगी. हाँ समोसे खाए? और इनको समोसे खाने के बाद हिचकियां आ रही हैं. But what we want to do now is since we've tore those two guys apart, I honestly want to get an opinion, a woman's intuition, new opinion on what women might think of. Let's start with JT, Justin Trudeau. एक औरत होने के नाते, what do you think women actually think of Justin Trudeau as a person? I mean, as a person? Yeah, is he nice to look at from a woman's point? Well, they do compare him to Prince Eric. Yeah, I heard that so many times, man. Can you jog my memory? From The Little Mermaid. Yeah. Prince Eric. So. Yeah. Wow, man, I didn't even know that because I heard that somewhere. Yeah. And now she's mentioning it. Like, but as a woman, what do you think might appeal to a woman when they look at? So honestly, when he did come into politics, when I saw him, I was like, oh my gosh, he looks like a real prince, right? And we had very high hopes, and we were thinking, everything is going to get better, but apparently instead of getting better, I feel like it just got worse and worse and just kept going down, and it's very unfortunate to what we have now, right? It's I think sad. that's an unfortunate thing. Yeah. So if you're asking about appearance doesn't matter. Like in the end, you can see, the first glance. The first glance for anybody. Oh my God, that's a beautiful person. But does that person stay beautiful once you get to know them internally? There you go. Right. So you can look as good as a Greek god, right? If you act like the devil, like Lucifer. Yeah, but he's not the devil, man. What point? That's a different. Look at his hair. How can he be the devil? Lucifer had. Have you seen his hair when the wind is blowing when he's standing outside of his house? Yeah, I actually liked him when he kept a beard, man, during COVID and stuff. He's a good-looking man, but nobody is looking at that when it comes to you politics. Might not be, but I think me and Abdullah are kind of. No, but see, Farah, here's the thing. He started off really well. I think in his 10-year reign, we had really high hopes. He did well for about 7 years. Yeah. But unfortunately, he will be remembered for the 3 bad years he had. It wasn't just 3 bad years. You're talking about like a good since COVID. That's right. Since COVID, but food. People can't afford food. People can't afford houses. Poverty has gotten huge. Look at downtown. It's like covered in homeless, tents. Like it's very sad. It is. It's what's happened. So answer this. Like I want everyone's honest opinion on this, and my audience as well. Can you blame one person for everything that's taken place in the last, let's say, 5 years in Canada? Can you put all the onus on Justin Trudeau for whatever took place? Inflation. Well, I don't know what's happening behind the scenes. Yeah, his face is there, right? So it's his face. All the blame, right? We don't know what's happening behind the scenes, right? Yeah, the unfortunate thing is, I mean, that you're gonna blame him because you see him on screen. Yeah. Right. So, but in all honesty, like we talked about earlier, it wasn't just him. I mean, there was a big fracture in his caucus, and there was a major problem in the party for the last little while. Yeah. और जो अभी कुछ दिन पहले before him somebody else stepped down, the Minister of Finance. Yeah, what's that crazy Flaherty or whatever her name called him like a demon whore. She probably had a lot to do with whatever took place, right? लेकिन वो बेचारी साइड से निकली because she wasn't in front, right? Yeah, that's the thing. बेचारा जो आगे पर्दे पे जो आते हैं ना, वो मार खा जाते हैं. Yeah. वो मार खा जाते हैं. But one person who never mars खा और खास मार is DT, Donald Trump. DT doesn't because ना उसकी शक्ल है. नहीं क्योंकि ना शक्ल है. Maybe one of the most handsome guys there are. Really, or maybe on Mars. You know what? He's a good businessman. An excellent businessman. He is he's not a politician. He's a businessman. Man runs a tight ship, no doubt. He knows what he wants, and तो वो साला मतलब वो जो है ना इसके फेवर में काम करता है. He can be the worst person. He's a bad person. Come on, man, relax. He's Lucifer multiplied. Man. I love Donald Trump. He stopped the war, didn't he? Thank you. मैं वही तो कह रहा हूँ. I still love him. Him being whoever he is, as not good looking as he may be. Yeah.
वो जब बातें करता है ना, the moment he opens his mouth, I start laughing. Oh, yeah, shit starts coming out. He keeps us entertained. I couldn't believe it when I found out. I thought it was a joke. I was like, no, this is a joke, right? When he became president. Yeah, no, seriously. I was like, this is when a we joke. woke up that morning, that fateful morning in 2016, and we saw that he won the damn presidency, like The first time? Yeah. Or yeah, the first time. in First time. 2016. Yeah, exactly. And then It's like- and now he becomes president again. Again, he takes a 5. I took a 4-year break, and I thought I'd come ये back बार-बार and do मजाक it हो रहा है. again. You know, I mean, it doesn't make any sense, man. But I'll tell you this: the reason why he's so popular, and the reason why Trudeau isn't, and I'll tell you, this is a personality thing, okay, Farah and Abdullah, is that DT doesn't give a shit about anything. Yeah. He doesn't actually care. doesn't give a shit about anything or anyone. Or anyone. And that's the charming part of his character, his personality. That's why people love him, because he doesn't give a shit. Now, Trudeau, he's so goddamn concerned about the way he sounds, how he looks. I just gotta make sure that the pickle in my ass has been removed and that everyone else is really paying attention to the way I speak. I'm very decent in the way I speak. I hope people love me. And that's the problem. You think people can't figure out that he's full of shit? Anyways, I just want to ask one more Oh, question. am I wrong? Farah, am I wrong? You're never No. wrong, man. You're never wrong. You're right. You're the only thing that is right about you is that you're always right. Yep. Right? What? अगर आपको choice दी जाए, if you could pick someone out of the hat. Imran Khan. नहीं. Oh my God. Okay, sorry. ये हमेशा इमरान खान को उठाएंगे. He's amazing, isn't I he? love him. I love him. इकट्ठे होके वो तो मतलब he should be the president of the world. Yes. Yeah, he should. लेकिन अगर कनाडा के लिए आपको किसी को चुनना हो and pick anyone, could be a Canadian Actor. hockey player, Ryan Gosling. or who would you pick? I pick Ryan Gosling. No, I'm asking He's for hot. No, I don't. anyone. It could be yourself. You're Canadian too. This country's gone like weird, so Oh. I don't know if anyone can fix it. Hot take right there, man. This I don't know if country's anyone going- can fix it. Something's wrong with this country, Yeah. according to Farah. Well, There's maybe a not lot for going- too long. going because, wrong. At some point, apparently, according to The Simpsons, by the end of this year, we will become the 51st state Right. of the Are United you States. building of your America. sources on The Simpsons? Is that what you're getting your research from? Because- COVID भी उन्होंने ही कहा था. But he was right. Donald Trump की भी उन्होंने prediction Groening की was थी. right about a lot of things, man. Who? The Yeah, writer. Simpsons, right? Yeah. Yeah. And they predicted It's kind of another scary. virus. Yeah, it's true. No. Yeah. Yeah. So Well, you're not I picking wouldn't. anyone. You know How what? about Imran It's Khan to too. run for Prime Minister of Here in Canada? Canada. He can't do it in Pakistan, so why not do it over here? Might as well. Anytime him. Oh my God. No, what about him do you like? He's just I a love him. handsome man. No, he has personality. Oh, man, he's got He charisma has like no one else's everything. business, He's man. very well spoken, Oh. very well educated. He knows what he wants. Like he knows how to. He's just a genuine person. He knows what he wants for people. He's a fighter. He fights for the actual people. He Thank doesn't. you. No doubt. He doesn't fight for Thank you himself for and that. money for himself and like, building his own wealth. It's Now, about Just remember this, honey. Don't be going back to Pakistan now. I'm just telling you right All of now. that, yet he's sitting in a jail You're cell. still in a It's jail very cell. You're gonna sad. be if you're gonna be promoting ये him from होता है, outside. इसको कहते हैं, No. क्या कहते हैं इसको? हाँ, कुछ मुनाफिक. कहते हैं, नहीं, कुछ कहते हैं इसको. Hypocrisy? मैं भूल गया हूँ, नहीं hypocrisy कहते हैं, irony कहते हैं, क्या Oh, कहते हैं? irony. Something. There's something wrong with what's happening in Pakistan. Anyways, Yeah, वो yeah. topic हम We'll talk about that डब्बा कीड़ों का ना खोलें. You don't know. It's probably better. Anyhow, I think we're running out of time. I think we dedicated the whole episode to JT and DT, but it was due, right? One guy's stepping up, one guy's stepping down. Yeah. But I'm just gonna ask you a quick question because I mean, I'm curious about this with both of you guys actually. If you want to win over people, what is the most important quality or personality trait that you should have in order to win people over? Good looks. be genuine. Nobody's genuine. That's the difference between a man and a woman. The women's हम looking हम for. बस हम सिर्फ वो देखते हैं. ये तुम अपनी बात करो. बाहर का. अपनी physical. बात करो. मैं इससे agree करता हूँ फरा से. अब तो करोगे तुम. It's hard to find a genuine politician. That's all there is to it. Anyways, Genuinely is the best. I just saw the clock and I saw someone's hand moving. And I saw middle fingers. What I saw when they told us to stop. We will be back again and we'll talk more about this in our next episode. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, and we'll be back next week, same time, same place. Same place. Toodaloo. What is that? What did you say? Toodaloo? Who the hell says that? Peace out. Toodaloo.